سے میرے پیارے بندے، تیرا اللہ تجھ سے سیدھے دل سے دل کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ کوئی تیرا خواب نہیں ہے، نہ تیری کلپنا کا کھیل۔ یہ میرا احساس ہے، میرا بلاوا ہے۔ میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں، صرف تجھ سے۔ میں جانتا ہوں تیرے دل میں کتنی ہلچل ہے۔ تیری راتیں نیند سے خالی رہتی ہیں، تیری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ کبھی شکایت کرتا ہے، کبھی رو لیتا ہے، کبھی خاموشی میں امید رکھتا ہے، اور تو سوچتا ہے کہ یہ سب میں نہیں دیکھتا۔ پر میرے بندے، میں تجھ سے کبھی دور نہیں تھا۔ جب تو ٹوٹا، جب تو بکھرا، جب تو نے کہا اب مجھ سے نہیں ہوگا، تو میں ہی تیرے اندر ہمت بن کر بہہ رہا تھا۔ تو پوچھتا ہے، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے؟ کیوں مجھے ٹوٹنا پڑتا ہے؟ کیوں میری دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں؟ سن میرے بندے، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا وہ میری نظر سے اوجھل نہیں تھا، وہ میری مرضی سے ہوا۔ تجھے گرانے کے لیے نہیں، تجھے بنانے کے لیے۔ ہر ٹھوکر ایک اشارہ تھی، ہر درد ایک سبق تھا۔ میں نے تجھے اس لیے گرنے دیا تاکہ تو زمین سے نہیں، ضمیر سے جڑ سکے۔ تو دوسروں کو دیکھتا ہے، ان کے پاس دولت ہے، رشتے ہیں، شوہرت ہے، اور تو سوچتا ہے مجھے کیوں ادھوری محبت ملی، مجھے کیوں بچپن میں تکلیف ملی، مجھے کیوں بار بار ہارنا پڑا۔ لیکن میرے پیارے بندے، تو نے کبھی غور کیا کہ میں نے تجھے کیا دیا ہے؟ میں نے تجھے ایک ایسا دل دیا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے، ایک ایسی زبان دی ہے جو سچ بولتی ہے، ایک ایسی آنکھیں دی ہے جو جھوٹ میں بھی سچ ڈھونڈ لیتی ہے، اور سب سے بڑی بات، میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے صرف ضرورت میں یاد کرتے ہیں، پر تو مجھے بنا مانگے بھی یاد کرتا ہے۔ تو راتوں کی خاموشی میں میرا نام لیتا ہے اور میں مسکرا دیتا ہوں۔ میرے بندے، تو جلدی میں ہے، لیکن میں تیرا مقدر دھیرے دھیرے لکھتا ہوں، کیونکہ جو دیر سے ملتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، پر میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر وہ چنگاری ہے جو ایک دن دنیا کو روشن کرے گی۔ تیرے اندر وہ جنون ہے جو دلوں کو بدل دے گا۔ ابھی جو جگہ تو ہے وہ تیرا ٹھکانہ نہیں۔ میں نے تیرا راستہ روشن کیا ہے۔ میں نے تجھے دیر سے دیا تاکہ جب تجھے ملے تو اس کا حقدار بھی ہو اور تیار بھی۔ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ جو تو سوچتا ہے کہ تیرے جیون کا انت ہے، وہ صرف ایک ادھیائے کا انت ہے۔ تیری کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تیرے آنسو مسکان بن کر لوٹیں گے، تیری محبت ادھوری نہیں رہے گی، تیرے سنگھرش بیکار نہیں جائیں گے۔ میرے بندے، تو فینکس کی طرح ہے، راکھ سے پھر اٹھنے والا۔ تو جتنا ٹوٹا اتنا گہرا بنا، تو جتنا سہا اتنا سمجھدار بنا۔ اب کوئی تجھے روک سکتا ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میری محبت تیرے لیے بنا شرط ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو بھوکا دیکھ کر رو پڑتی ہے، ویسے ہی تجھ پر رحمت کرتا ہوں۔ تو ڈرتا ہے اکیلے پن سے، تو بھیڑ میں چھپتا ہے، پر سن، اکیلاپن تیرے لیے سزا نہیں، وہ میرے ساتھ کی تیاری ہے۔ جب تو اکیلا ہوتا ہے تبھی تو مجھے سب سے صاف سن سکتا ہے۔ اگلی بار جب اکیلا ہو، ڈر مت۔ سمجھنا، تیرے پاس میں بیٹھا ہوں۔ تو ڈرتا ہے اسفلتا سے، ترسکار سے، اپنوں کو کھونے سے، پر یاد رکھ، ہر ڈر کے پیچھے ایک خزانہ چھپا ہے، تیرے آتمل کا، تیرے نئے ویکتتو کا۔ جب تو ڈر کی گہرائی میں اترتا ہے تب تو مجھ سے مل جاتا ہے۔ تو شکایت کرتا ہے کہ لوگ بدل گئے، دور ہو گئے، دھوکہ دے گئے، پر میرے بندے، ہر انسان جو تجھ سے جڑا وہ میری حکمت سے جڑا۔ کچھ لوگ تجھے گلاب کی طرح ملے، خوبصورت لیکن کانٹوں سے بھرے۔ کچھ لوگ آگ کی طرح ملے، جنہوں نے تجھے تپایا لیکن سونا بنا دیا۔ اگر وہ تجھ سے دور چلے گئے تو میری اجازت سے گئے، کیونکہ اگر وہ ٹک جاتے تو تیرا بھوشیہ رک جاتا۔ اس لیے جب اگلی بار کوئی تجھے چھوڑ جائے، بس اتنا کہنا، میرا اللہ میری کہانی کا اگلا پنا پلٹ چکا ہے۔ تیرے آنسو، تیری دعائیں، تیرے سجدے، سب میں نے دیکھے ہیں۔ اب امتحان کا وقت پورا ہوا۔ اب رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، اور جب یہ کھلیں گے تو اتنی روشنی آئے گی کہ تو خود حیران رہ جائے گا۔ جو لوگ تجھے کمزور سمجھتے تھے وہ اب تیری طاقت سے کانپیں گے، جو تجھے نظر انداز کرتے تھے وہ اب تجھے ڈھونڈیں گے۔ اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ اب تو بھیڑ میں چھپا نہیں رہے گا، بلکہ بھیڑ سے الگ دکھے گا۔ جیسے اندھیرے میں چاند نکل آتا ہے، تیرے چہرے پر اب نور ہوگا، تیرے لفظوں میں اثر ہوگا، تیرے قدموں میں برکت ہوگی۔ لیکن ایک شرط ہے، جب میں تجھے اونچا کروں گا اور دنیا تیری تعریف کرے گی تو گھمنڈ نہیں کرے گا، تو مجھے یاد رکھے گا، کیونکہ جو اونچائی پر ہوتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، هو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين نقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم موبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها وجون سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال وبلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما إلا في ضلال كبير وقالوا وكنا نسمع أو نعقل ما كنا في صحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلول لا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا في عتو ونفور أفمن يمشين مكي باع على وجهه أهدى أمني امشي سوي على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ها الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العيد لمعند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء من پیارے دوستو جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ جی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنتیوں جائے گی۔ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ جی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تمت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ جی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن کر عرض کیا باجان یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ جی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر گزارش کی ابا جان کرپیا مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ جی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی، ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے
उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला बहुत कमजोर हो गई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर आपको शाह, यदि याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हक पड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला पड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इससे कुछ खाना खरीद लाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन पड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत परेशान हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए पिए हैं। ए मेरे रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ने कहा, जी हां, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली ने कहा, जनाब आप जो भी कीमत देना चाहें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला खुशी खुशी राजी हो गए और कहा, जनाब आप इसे 4 दिरहम में खरीद सकते हैं। इसके बाद उसने हजरत अली को 6 दिरहम दी और कपड़ा लिया। दहर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते आप समय कहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं। वे हर हालत में चाहे खुश हो या परेशान सदका करते हैं। दूसरा फरिश्ता बोला, यह सच कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे तब करते हैं जब उनके पास कुछ होता है। अगर उन्हें खुद जरूरत हो तो वे नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को खत्म करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों आपस में बहस मत करो। इसका हल निकालने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इनकी उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर भी 6 दिरहम मांगो, देखो कि क्या वह तुम्हें देता है। अल्लाह के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली के पास आया। उस वक्त अली खाना खरीदने जा रहे। फकीर बोला, है अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरे शरीर में चलने की ताकत भी नहीं बची है। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दीजिए। हजरत अली ने सोचा, मैं तो ये कपड़ा अपनी बीवी और बच्चों के लिए बेचकर लाया था, लेकिन अब एक और अल्लाह का बंदा भूखा है। उन्होंने 6.5 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद अली परेशान दिल से आगे बढ़े तो एक शख्स लाल घोड़ा लिए मिला। उसने कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं? अली ने कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। उस शख्स ने कहा, आप इसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता फरमाए तब कीमत अदा कर दीजिए। उस शख्स ने इसने घोड़ा 7 दिरहम में अली को दे दिया। अली उसे लेकर बाजार गए तो एक और शख्स मिला और बोला, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? अली ने कहा, हां। उसने कहा, मैं यह घोड़ा 80 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। अली ने सोचा, मैंने यह घोड़ा टाक में खरीदा था, अब उसमें बिक रहा है, यानी इस दिरहम का फायदा हो रहा है। अली ने वह घोड़ा बेच दिया और उसके पास 6 दिरहम आ गए। अब हजरत अली के पास 60 दिरहम बचे। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह ने उसे 10 गुना बढ़ाकर 80 दिरहम वापस दिए। इन्हीं पैसों से अली बहुत सारा खाना खरीद कर लौटे। घर पहुंचे तो हज़रत फातिमा ने पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना कहां से लाया? अली ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। यह सब हलाल और जायज है। लेकिन फातिमा को शक हुआ और उन्होंने अली को सवालों में उलझा दिया। कुछ दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाया और फरमाया, क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? फातिमा ने कहा, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिलने की ख्वाहिश रखती हूं। नबी ने फरमाया, वह लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में रहते हैं, तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। फातिमा वहां पहुंची तो लकड़हारे की बीवी ने कहा, आप नबी की बेटी हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन मैं आपको घर में इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है, पहले मैं उनसे इजाजत लूंगी। अगले दिन फातिमा गई तो हसन को भी साथ ले गई।
बीवी ने कहा, मैंने आपके बारे में तो इजाजत ले ली है, लेकिन हसन के बारे में नहीं। आप कल आइए। तीसरे दिन फातिमा हसन और हुसैन दोनों को साथ ले गई। लकड़हारे की बीवी ने कहा, मैंने आपके और हसन के लिए तो इजाजत ली है, लेकिन हुसैन के लिए नहीं। आप कल आइए। चौथे दिन जब फातिमा दोनों बेटों के साथ गई तो लकड़हारे की बीवी ने इजाजत दी। अंदर जाकर फातिमा ने देखा वह औरत पानी, रस्सी और लकड़ी लेकर बैठी है। फातिमा ने पूछा, बहन ये सब क्यों? उसने कहा, मेरे शौहर मेहनत करके आते हैं, शायद उन्हें पानी की जरूरत हो, इसलिए मैं तैयार बैठी हूं। अगर वह नाराज होकर मुझे सजा देना चाहे तो उन्हें रस्सी और लकड़ी की तलाश करनी पड़े। फातिमा यह सुनकर हैरान रह गई और वापस नबी के पास आई। नबी ने पूछा, फातिमा क्या तुम उससे मिली? क्या देखा? फातिमा ने कहा, अब्बा जान, वह औरत बहुत वफादार और खिदमतगार है। नबी ने फरमाया, फातिमा तुमसे पहले वह औरत जन्नत में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर की इताअत और मोहब्बत में वह दर्जा पाया है। जिस कपड़े को अली ने बेचा था वह कपड़ा अल्लाह ने जन्नत में रख दिया है, और जिस घोड़े का सौदा हुआ था वह भी जन्नत में है। कयामत के दिन तुम उस घोड़े पर सवार होगी, उसकी लगाम वह कपड़ा होगा, और उसे पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में जाएगी और तुम उसके बाद दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत और खिदमत की वजह से मिली। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में सदका, सब्र और कुर्बानी ही असली कामयाबी है, और शौहर बेगम का रिश्ता मोहब्बत, वफादारी और इताअत पर टिका होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम उस हस्ती का जिक्र करने बैठे हैं जिनका नाम आते ही दिल को सुकून मिलता है, आंखें रोशन हो जाती हैं और रूह को ठंडक पहुंचती है। वो हस्ती है सरवरे कायनात, रहमतुल आलमीन, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। जन्म और बचपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का की पवित्र धरती पर देम रबीउल अव्वल को सुबह सुबह हुआ। आपकी वालिदा हज़रत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आपने इस दुनिया में कदम रखा तो मैंने आसमान की तरफ देखा और शामी किलो तक नूर दिखाई दिया। काबा की दीवारें हिलने लगीं, ईवान एक किसरा के सोच मेहरा बिर गए। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियाँ थीं कि अब वो नबी आ चुके हैं जिनका इंतजार सदियों से इंसानियत कर रही थी। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपके पैदा होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा अलीदा भी इस दुनिया से चली गईं। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाल पोस कर बड़ा किया। 8 साल की उम्र में दादा का भी साया उठ गया, और फिर आपके चाचा अबू तालिब ने आपको अपनी कफालत में ले लिया। आप बचपन से ही सब बच्चों से अलग थे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गंदी बात जबान से नहीं निकाली। खेलते समय भी आपका अंदाज अलग था। लोग आपको सादिक, सच्चा और अमीन ईमानदार कहकर पुकारते थे। नौजवानी और ईमानदारी जवानी के दौर में आपने व्यापार करना शुरू किया। आपकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें हर तरफ मशहूर हो गईं। जब लोग देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है तो आंखें बंद करके खरीद लेते। इसी दौरान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अल्लाहु अन्हा ने आपका अखलाक और सच्चाई देखी। वो बड़ी मालदार और इज़्ज़तदार औरत थीं। उन्होंने आपसे निकाह, उस वक्त आपकी उम्र 10 साल और उनकी 80 साल थी। यह निकाह बहुत मुबारक साबित हुआ। आप दोनों की ज़िंदगी बेहद सुकून और मोहब्बत में गुजरी। पहली वही और नुबुव्वत जब आपकी उम्र 30 साल हुई तो आप तन्हाई पसंद करने लगे। अक्सर हिरा की गुफा में जाकर अल्लाह की याद में मशगूल रहते। रमज़ान की स्पेंसन वीन रात जब आप गुफा में इबादत कर रहे थे तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप सर ने कहा, माँ अना भिखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं। 3 बार यही हुआ, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली आयतें सुनाई, इकरा बिस्मी रब्बिकल जी खलक। यहीं से आपकी नबुव्वत का आगाज हुआ। मक्का का दौर, जुल्म और सब्र। 23 साल तक आपने मक्का में लोगों को तौहीद का पैगाम दिया, मगर कुरैश के लोगों ने आपको ताने दिए, झूठा कहा, जादूगर कहा, यहाँ तक कि दीवाना कहा। आपके सहाबा पर जुल्म किए गए। हज़रत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रखा गया, मगर वो कहते रहे, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा को भाले से शहीद कर दिया गया। वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। हज़रत खब्बाब बिन अरत को आग पर लिटा दिया गया। लेकिन इन सब हालात में भी आपने सब्र किया और सहाबा को सब्र की तालीम दी। ताइफ का वाक़या भी बहुत मशहूर है। जब आप ताइफ गए और लोगों को दावत दी तो उन्होंने पत्थर बरसाए, आप लहूलुहान हो गए।
یہاں تک کہ خون جوتوں میں بھر گیا، مگر آپ نے بددعا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ تھا آپ کے رحمت اور صبر کا علم۔ ہجرت جب مکہ والوں کا جرم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا۔ قریش نے پیچھا کیا لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو بچایا۔ غار ثور میں مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ بن گیا۔ مدینہ کا دور بھائی چارہ اور سماج مدینہ پہنچ کر آپ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا۔ مسجد نبوی بنائی، وہاں نماز، تعلیم، انصاف، بھائی چارہ سب کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ پہلی اسلامی حکومت تھی جہاں امیر غریب، کالے گور، عربی اجمی سب برابر تھے۔ جنگیں، صبر اور فتح۔ بدر کی جنگ، 310 مسلمان بنام 1000 کافر، اللہ کی مدد سے مسلمان جیتے۔ احد کی جنگ، مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیکن آپ نے صبر اور ہمت کی تعلیم دی۔ خندق کی جنگ، پورا مدینہ گھیر لیا گیا لیکن مسلمانوں نے کھائی کھود کر دشمنوں کو ناکام کر دیا۔ فتح مکہ، آخرکار فتح مکہ کا دن آیا۔ 10,000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ دشمن سہمے ہوئے تھے مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آخری حج اور وصیت، 31 سال کی عمر میں آپ نے آخری حج کیا۔ وہاں لاکھوں لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کتاب اور سنت کو پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، عورتوں کے حق کا خیال رکھو۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آخری سفر، اس کے کچھ دن بعد آپ بیمار ہو گئے۔ صحابہ بے چین تھے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی اور واو ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پورا مدینہ رو پڑا، صحابہ سہارا کھو بیٹھے۔ نصیحت بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی سادھارن انسان کی کہانی نہیں، یہ اس نبی کی زندگی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی سنتوں پر چلیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بھائی، کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ پیغام یہاں الفاظ لمحہ یوں ہی تمہارے سامنے نہیں آیا، شاید تم ابھی تک نہیں جانتے، مگر اللہ کی قدرت نے تمہیں اس وقت اس جگہ ایک خاص مقصد کے لیے روکا ہے۔ اس پیغام کو آخری تک مت سنو اگر تم تیار نہیں ہو اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گا۔ لیکن اگر تم سب مجھ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ان سب کچھ اچانک کیوں بدلنے والا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگلے کچھ لمحوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا راز بتانے والا ہے جو صرف اس کے چنے بندوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب تم ان میں سے ایک ہو۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ حال ہی میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے؟ کبھی بے وجہ بے چینی سی چھا جاتی ہے، کبھی کسی کے آنے کا احساس ہو اس کے آس پاس کی کائنات کو بدل دیتا ہے، اور یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاید تم نے کہو حال ہی میں تمہارے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے، کچھ ایسے خواب آئے جو غیر معمولی تھے، کچھ ایسے خیالات دل میں آئے جو جیسے کہیں سے اتر کر تمہارے ذہن میں گونجن لگے۔ یہ کوئی سادھارن خیالات نہیں ہے، اس قدرتی طاقت کی نشانیاں ہیں جو تمہارے قریب آ رہی ہے۔ شاید تمہیں حیرت ہو، مگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر روز نشانیاں دیتا ہے، لیکن ہر کوئی ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پا۔ تم ان مومنوں میں سے ہو جن کے دل میں وہ روشنی ہے، وہ ذبح ہے، وہ نور ہے جو ان باریک نشانیوں کو پکڑ سکتا ہے، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تم ایک گہرے روحانی سفر پر قدم رکھتے ہو، وہ سفر جو تمہیں تمہاری اصلیت سے ملاتا ہے، تمہارے رب کی بارگاہ سے جوڑتا ہے۔ یہ پیغام تمہیں اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ اب وقت آ چکا ہے۔ جو انقلاب تمہاری زندگی میں آنے والا ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ تمہاری پوری حقیقت کو پلٹ دے گا۔ جو تم نے اپنے لیے کبھی مانگا، خوشی، کامیابی، محبت، مقصد، وہ سب اب تمہارے اور قریب آ رہا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، جب کوئی بڑا بدلاؤ آنے والا ہوتا ہے تو پہلے ہر چیز بکھرتی سی لگتی ہے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے، ویسے ہی انقلاب سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ تم یہ بے چینی محسوس کر چکے ہو، ہے نا؟ یہی اس بات کی نشانی ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو پکارا ہے۔ اس وقت تمہارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کی ایک بڑی تدبیر کا حصہ ہے۔
जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ जाती हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक क्यों रुक जाता है। मगर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। जब अल्लाह कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह इशारों में, निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत के मानी में, कभी किसी अनजान की बातों में, और कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में, या कभी इस पैगाम जैसे जरिए से। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए एक रूहानी बातचीत है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है सुकून इख्तियार करो। अपने दिल में झांक कर देखो। उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार उभर रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार सामने आते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की हिदायत के साथ मिलकर तुम्हें राह दिखा रहा है। जिन सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे हो वे जवाब तुम्हारी अंदर छिपे हैं, और यह पैगाम उस जवाब की पहली झलक है। अल्लाह की तदबीर अब तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। अब उसकी मर्जी सक्रिय हो चुकी है। कोई इससे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी मौजूदा समझ से परे होंगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, अचानक वापस आ जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। होता है तुम थोड़ा परेशान हो, किस कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, मगर डरना नहीं। यही अल्लाह की जो तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वे मामूली नहीं। कभी बेवजह रंजो गम छा जाएगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें थाम लिया, कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ताला सिर्फ निशानियां नहीं देगा, खल देगा। वह तुम्हारे प्राणों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बोझ को हल्का करेगा, और तुम्हारे चारों ओर ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब इंकलाब आएगा। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जहन अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे मुझे क्यों चुना गया। तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले किसी और की दुआओं का जवाब दिया था। तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों के दिलों में भी रूहानी जागरूकता पैदा कर सके। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक जत्था है जो तुम्हारे ख्यालात को सुन रहा है, तुम्हारी हिफाजत में लगा है, और हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारे रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर खींच चलाएगा। मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जो बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और भी सजग रहना है। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी है। हर रोज खुद से यह वादा करना है, मैं जो बोलूं उसमें नूर हो, मैं जो सोचूं उसमें मोहब्बत हो, मैं जो मांगू उसमें भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी राह पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं था, यह अल्लाह का वह खास संदेश था जो सिर्फ उन बंदों तक पहुंचता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब जब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, समझो लौकिक से बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह गैबी ताकत तुम्हारे बिल्कुल करीब, बस एक कदम दूर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर रोज उस निशानी के लिए जागरूक रहना है। अगर दिल से महसूस हो रहा है कि अल्फाज तुम्हारे लिए है तो इसे अपने कम तर रखो, इसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आया है। अल्लाह का कभी बेइज्जत कोई निशानी नहीं भेजता। अगर आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। यह तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से एक सीधा संदेश है, उस रब की ओर से जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है, और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस कर रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठरसा जाता है, जहां हम अपनी राह को लेकर परेशान हो जाते हैं, जहां हम सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच हमारी तकदीर बदल सकती है, क्या सचमुच मौजे होते हैं।
آج کا دن وہی موڑ ہے۔ اگر تمہاری روح نے اس پیغام کو محسوس کیا ہے، اگر تمہارا دل بے وجہ دھڑک اٹھا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں پکار لیا ہے۔ تمہاری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ جو بدلاؤ تم نے اتنی شدت سے مانگا، جو دعائیں تم نے الفاظ کے کی، جو خواہشیں تم نے ڈر کی وجہ سے چھپا لی تھی، وہ سب اب تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم نے بہت کچھ سہ لیا، اب تمہاری باری ہے پانے کی۔ تمہاری زندگی کی سب سے اندھیری رات اس صبح سے ٹھیک پہلے ہوتی ہے جب نور آنے والا ہوتا ہے۔ جو مشکلات، پریشانیاں یا تنہائی تم محسوس کر رہے ہو، وہ سب اب تمہارے دل سے نکلنے والی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تمہاری زندگی کی دھارا کو بدل دے گا۔ اللہ تمہیں روحانی، ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کر رہا ہے۔ جو راہ تم نے چنی، وہ اللہ کی رحمت سے سیدھی ہو رہی ہے۔ جن دروازوں کو تم کھٹکھاتے کھٹکھاتے تھک گئے تھے، وہ اب خود بخود کھلنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں نظر انداز کیا، جن حالات نے تمہیں روکا، جن ناکامیوں نے تمہیں ہلایا، وہی اب تمہاری زندگی کی کہانی کو ایک مثال میں بدل دیں گے۔ مگر تمہاری روح کی پوترتا ہی وحقت ہے جو تمہارے لیے راستے کھولتی ہے۔ تم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تم نے ہمیشہ خود سے زیادہ دوسروں کا خیال کیا، تم نے وہ سب کیا جو ایک سچے مومن کو کرنا چاہیے، اور اب وہ ساری نے کیا مل کر ایک چمکتا ہوا نور بن گئی ہیں جو تمہاری زندگی کو منور کرنے والی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے۔ تم آزمائے گئے ہو، امتحان پر امتحان دیے ہیں تم نے، تم تھک گئے ہو، ٹوٹے ہوئے تم رکے نہیں، ہر بار اٹھ کھڑے ہوئے۔ چاہے دولت نے تمہیں گرایا ہو، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہی دیکھتا ہے تمہارا نہ رکنا، تمہارا یقین اب بک ہے۔ اس یقین کو پھلتے پھولتے دیکھنے کا وہ رشتہ جو تمہیں پریشان کر رہا تھا اب صاف ہو جائے گا۔ آیا تو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا، یا اللہ تمہاری روح کے مطابق کوئی اور بھیجے گا۔ وہ موقع، وہ شوہت جس کے لیے تم آتوں کو جاگے اب تمہارے قدموں میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اگر تم انہیں ابھی اسی لمحے اپنے دل سے نکال دو گے تو یقین مانو کل کی صبح بالکل الگ ہوگی۔ اب سے تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہے، تم اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو گے، تم اپنی روح کی آواز کو دبنے نہیں دو گے، کیونکہ اللہ کی ساری قدرت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی روح کی پکار کو سنتا ہے۔ تمہاری روح بار بار کھڑی ہے، تیار ہو جاؤ، کچھ اب بڑا ہونے والا ہے۔ یہ پیغام چابی ہے جو اس دروازے کو کھولنے آیا ہے۔ اسے محسوس کرو، اسے اپنے دل میں بساؤ اور خود سے کہو میں اس کے لائق ہوں۔ تم اللہ کے پیارے بندے ہو۔ یہ پیغام وہ سب لایا ہے جو تم نے مانگا۔ جو خواب تم نے دیکھے، اللہ اب انہیں ایک تدبیر میں بدل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں تم دیکھو گے کہ کیسے ایک کے بعد ایک اتفاق، ایک کے بعد ایک موقع اور ایک کے بعد ایک معجزے تمہاری زندگی میں اترتے چلے جائیں گے۔ ہر دن، ہر لمحہ تمہیں ایک نئی راہ دے گا اور تم خود محسوس کرو گے، ہاں یہی وہ وقت ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا۔ کھلی رکھو، اپنے دل کو سکون میں رکھو اور اپنی روح کو تیار رکھو، کیونکہ اگلے ریستوں سے گھنٹوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اللہ نے تمہاری اتفاق نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی اور سے تمہارے لیے بھیجا گیا ایک روحانی پیغام ہوگا۔ اگر اس پیغام کو سنتے وقت تمہاری آنکھیں نم ہو گئی یا تمہارے ذہن میں ہلچل سی مچی، تو سمجھ لو یہ پیغام صرف تمہارے لیے تھا، اور اب تمہاری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اس کی رحمت تمہیں ہر قدم پر ہدایت دے گی۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نور کی طرف بلاتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل میں صبر کا پھول کھلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم لگے کہ دعاؤں کا اثر دیر سے آتا ہے، مگر یقین مانو ہر دعا آسمان پر درج ہو چکی ہے۔ کوئی بھی آنسو جو تم نے اللہ کے سامنے کر لوٹنے والے ہیں میرے پا یارے بھائی اور بہنوں، کبھی کبھی تم سوچتے ہوں گے کہ تمہاری آواز شاید آسمان تک نہیں پہنچ رہی، مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی رجا سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ہر دھڑکن، ہر آہ، ہر پکار سیدھے اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم اس رحمت کو تھامنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ آنے والا وقت تمہاری امتحان کی گھڑیاں نہیں لائے گا، بلکہ تمہاری محنت اور صبر کا پھل لائے گا۔ جو بھی مشکلیں تم نے اب تک سہی، وہ تمہارے صبر کا ثبوت تھی، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب انعام ملے گا۔ آنے والے دنوں میں تمہیں ایسے موقع ملیں گے جنہیں دیکھ کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ سب صرف اللہ کی تدبیر سے ہوا ہے۔ کوئی دروازہ اچانک کھل جائے گا، کوئی انسان اچانک مددگار بن جائے گا، کوئی راہ اچانک آسان ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کے نشان ہے، مگر میرے پیارے مسلمانوں، صرف رحمت پر اترانا مت بلکہ شکر گزار رہنا۔ ہر نماز کے بعد سجدے میں گر کر اسر بکا شکر ادا کرنا،
کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا، تمہیں دوسروں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بننا ہے۔ جیسے اللہ نے تمہیں چنا، ویسے ہی تمہیں دوسروں کی مدد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اگر تم کسی روتے ہوئے کو مسکان دے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی تنہا کو سہارا دے دو، تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی راہ میں سب سے بڑی عبادت کر لی۔ تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں صرف نیک عمل، محبت اور یقین تمہارا اصلی سامان ہے۔ باقی سب چیزیں، مال، دولت، شہرت صرف آزمائش ہے۔ اگر تم ان پر غرور کرو گے تو اللہ انہیں لے بھی سکتا ہے، مگر اگر انہیں رحمت سمجھ کر دوسروں میں بانٹو گے تو اللہ انہیں اور بڑھا دے گا۔ اور سنو آنے والے، الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلقا الإنسان علماه البيان، الشمس القمر وبحسبان والنجم والشجر سجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبان خرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن النبي إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين. أي آلاء ربكما تكذبان؟ إلى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضغاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف زريع عبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك الجلال والإكرام. نما کہانی بنے گی جسے سننے والا اپنی ہی زندگی سے جوڑ لے گا۔ اگر تو آج ٹوٹا ہوا ہے تو مت سمجھ کہ یہ تیرے مٹ جانے کی نشانی ہے، یہ تو تیرے بننے کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی دل پر رحمت برساتے ہیں جو سب سے زیادہ ٹوٹا ہو۔ دیکھ، مٹی کو پہلے جوتا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، پھر اسی مٹی میں بیج بویا جاتا ہے اور وہی مٹی ہریالی میں بدل کر سایہ دیتی ہے۔ تیرے ٹوٹنے کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے فِن مَا الْعُسْرِ یسرا، ان مَا الْعُسْرِ یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے۔ اگر آج تیرا دل تنہائی میں روتا ہے، اگر تیری راتیں بے خوابی میں گزرتی ہیں، تو سن، تیرے آنسو آسمان کے سب سے قریب۔ اللہ تجھے بھول نہیں گئے، وہ تجھے تراش رہے ہیں۔
याद कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने बरसों तक अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोया एंड यहाँ तक कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और फिर देख, बरसों बाद वही बेटा मिस्र का हाकिम बनकर उनके सामने आया और जुदाई की हर घड़ी खुशी में बदल गई। याद कर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जिनकी आजमाइश इतनी बड़ी थी कि उनके जिस्म पर सिवाय हड्डियों और जुबान के कुछ बाकी नहीं रहा। लोग पास तक आने से कतराते थे, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ ये लफ्ज निकलते थे, इन्नी मसनियत दुर्रू व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आ पड़ी है और तू सबसे रहमत करने वाला है। और देख, अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा सेहत, दौलत और औलाद कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जो अपनी कौम के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे, सामने दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर। हालात ऐसे थे कि सब कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन के साथ कहा, कल्ला इन माया रब्बी सहदीन, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और देख, दरिया में रास्ता बन गया और सब सुरक्षित निकल गए। और याद कर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ताइफ की गलियों में उनका जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत न की, बल्कि अपने हाथ उठाकर कहा, इलाही, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। यह सब्र की आखिरी मंजिल है और इसके बाद अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया का सरदार बना दिया। तो ऐ मेरे भाई, जब तू टूटा है, तन्हा है, बेबस है, तो समझ ले कि अल्लाह तुझे अपने सबसे करीब कर रहे हैं। अल्लाह कभी देर करते हैं लेकिन इनकार नहीं करते। आज तेरी दुरुक्सी लगती हैं, लेकिन कल वही दुआएं तेरे लिए दरवाजे खोलेंगी। तू मत समझ कि तेरा दर्द बेकार है। आंसू गिरते हैं तो जमीन पर नहीं, बल्कि अर्श पर दर्ज होते हैं। तेरे हर क्यों का जवाब लिखा जा रहा है। तेरी हर तन्हा रात का हिसाब रखा जा रहा है। अल्लाह ने वादा किया है, ला तकन्तु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। सोच, अगर रात हमेशा के लिए रहती तो सूरज की रोशनी की कद्र कौन करता? अगर सर्दी रहती तो बाहर का मज़ा कौन समझता? अगर तेरे हालात आसान ही रहते तो सब्र का इनाम कैसे मिलता? तेरी ठोकर तुझे संभालने के लिए है, तेरी हार तुझे जीत का रास्ता दिखाने के लिए है। आज लोग तुझे अकेला छोड़ सकते हैं, तुझे कमजोर समझ सकते हैं, मगर याद रख, जब सब तुझे छोड़ देंगे, तेरे रब का हाथ तुझसे कभी नहीं छूटेगा। कुरान में नहमास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है मैंने सब्र किया। तेरे आंसू हंसी में बदलेंगे, तेरी तन्हाई राहत में, तेरी दुआएं कबूलियत में। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे यहां तक पहुंचा, तो तू कहेगा, यह मेरे सब्र का इनाम और मेरे रब की रहमत है। ए मेरे रब, जैसे तूने अपने नबियों को आजमाइशों के बाद राहत दी, वैसे ही इस बंदे की मुश्किलें रहमत में बदल दे। उसकी रातों की तन्हाई को रोशनी बना दे, उसके आंसुओं को हंसी बना दे और उसके सब्र को ताज बना दे। और सुन, जब अल्लाह उठाते हैं तो वहां तक ले जाते हैं जहां ख्वाब भी नहीं पहुंचते। वो तुझे मिसाल बनाएंगे ताकि लोग तुझे देखकर कहें, यह वही है जो टूटा था, यह वही है जो हार गया था। और तू कहेगा, नहीं, यह वही है जिसने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखा। मदीने की गलियों में उस दिन सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था। हर जानिब रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी तो थी, मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए। 3 दिन हो चुके थे कि चूल्हान ही जला। फाका की कैफियत थी और मासूम बच्चे भूख से निडाल होकर रो रहे थे। फज्र की नमाज के बाद निशान, यहां तक कि दरख्त भी सूखकर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिसा वह एक सुख आराम फरमा रहे थे। उधर घर के अंदर से मासूम बच्चों, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की रोने की आवाज सुनकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके करीब आई। तब इमाम हसन और हुसैन धीमी आवाज में कहने लगे, अम्मीजान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमें कुछ खाने को दें। भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गई। दिल में हुक उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बाजान खाने की तलाश सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रज़ियल्लाहु और हुसैन रज़ियल्लाहु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और मां फातिमा दिल ही दिल में कहने लगे, काशकर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थमाता, लेकिन यह दरख्त भी तो सूख चुके हैं। अब वही मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गई।
फिर वह दोबारा निकल पड़े थोड़े से खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? माम करके वापस लौटा दूं। मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, अली मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली जलालू दिल शिकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के बिल्कुल बीच में था। उसकी तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। उधर बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरों का रुख दरवाजे की तरफ था। वो बेसब्री से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हजरत हसन और हजरत हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पुकारने लगे, अब बाजान आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ ना कह सके, बस इतना बोल सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा है, फातिमा मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से खाने का कोई इंतजाम ना हो सका। तब बीवी फातिमा ने नम और तसल्ली से कहा, मेरे जान से अजीज शौहर आप फिक्र ना करें, रिकिक का मालिक अल्लाह है। आप अब्बाजान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, शायद वह कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल भी देर ना की और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर एक बार रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रोती हुई आवाज में अपने रब से दुआ मांगी, हर कुछ मुमकिन है, हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफी है। तुझ किसी चीज की कोई कमी नहीं, मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमान तक कांप उठा। यह मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने वो रुदन सुना और सब के सब अल्लाह के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ए हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं, उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रुदन, ये तरब, यह भूख और बेबसी का आलम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ, महबूब में रहबू में रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी मौका है और मेरे महबूब से कह देना कि वह जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाएगा। यह सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शरीफ फरमा थे। मगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो दर्द और करबथाव से जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र थी, दिल में भी गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। सलाम अर्ज करके कहने लगे, रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं मगर परेशानी की कोई बात नहीं, आप जिधर भी निगाह डालेंगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने तमाम बात बयान की और वहां से रुखसत हो गए। उधर बीबी फातिमा ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और रो पड़ी। बस इतना कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूं। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना ही होने वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां आप पहुंचे। सलाम अर्ज करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बच्चे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है, ना ही खाने का जा इंतजाम है ना पानी का। या रसूल अल्लाह, आप कोई इंतजाम फरमा दें। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनी फौरन उस तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो एक सूखा हुआ मुकद्दर है। यह देखकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट गया और वो दोबारा वो कैसे फल देगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना कि मुझे आखिरी नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने भेजा है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूखे मुर्दा खजूर के दरख्त के और रोटी हुई आवाज में अर्ज करने लगे, ए खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहां के बादशाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है।
बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीन, तुम यह दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुक्म से और आखिरी नबी के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत लौटा। अभी यह अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि वह मुर्दा खजूर का दरख्त जिसमें जिंदगी का कोई निशान तक ना था अचानक हिलने लगा और उस पर से गिरने लगी ताजा नरम नाजुक खुशबूदार जन्नती खजूरें। इतनी खजूरें गिरी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। एक मुर्दा दरख्त से इतनी ताजा खजूरें, यह तो अल्लाह का करिश्मा था। उन्होंने बहुत सी खजूरें चुन ली और खुशी खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो मुर्दा दरख्त अब ताजा खजूरें दे रहा है, यह तो अल्लाह की तरफ से रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने के, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुमने गिले दे दरख्तों से भी खजूरें निकलती रहती। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अबू जहल से हुई। अबू जहल ने हैरान होकर पूछा, ए अली, ये खजूरें तुम्हें कहां से मिली? अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है, दरख्त मर चुके हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दे दरख्त ने ताजा खजूरें दी हैं। यह सुनकर अबू जहल दंग रह गया, हैरत ज़दा और शजदर खड़ा रह गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे तो उन्हें हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए और मासूमियत से बोले, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर उन्होंने आवाज दिया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुशी से चौंक उठी, कहने लगी, मेरे जान से प्यारे शौहर, इतनी नरम खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहां से लाए हो? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया है, फातिमा, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, इन्हीं मुर्दे टहनियों से मैं यह खजूरें ले आया हूं। तब भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला समझ गई कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने बच्चों को खजूरें दी, सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जी भर कर खाया। फिर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार फिर रोती हुई आवाज में अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगी, अल्लाह, मैं जानती हूं तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन, तू चाहे तो मुर्दे दरख्त तक को भी जिंदगी अता कर देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी रहमत और कुदरत को देख लिया है। तूने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें अता फरमाई, यह तेरी रहमत है। मगर कमाल यह था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी रहमत दिल थी कि वह यह सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों मिस्कीनों को दे दिया करती थी। उधर अबू जहल दिल में कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है, जरूर को इजादू से लाया गया है, यह जादू है या नबूवत की निशानी, मैं इसकी जांच करता हूं। यह सोचकर उसने कुछ कंकरियां अपने हाथ में ली और कुछ लोगों को साथ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें निकाल ली। की दास्तान। प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान में फरिश्ते आपस में बातें करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है। वे नेक इंसान हैं, बड़े सब्र वाले हैं और हर हाल में अपने रब को याद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और गुलामों को खरीदकर आज़ाद कर देते हैं। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये बातें इब्लिस शैतान ने भी सुन ली। उसके दिल में जलन पैदा हो गई। वह गुस्से में भरकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर औलाद और आरामदायक ज़िंदगी दी है। अगर इन सबसे उसे महरूम कर दिया जाए तो तेरी इबादत एक दिन भी न करेगा। मुझे इजाज़त दे कि मैं अय्यूब को आजमा सकूं। अल्लाह जो हर चीज़ का जानने वाला है, उसने शैतान को इजाज़त दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखलंदाजी की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो उसे आजमा सकते हो। शैतान एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हजरत, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन उसके जिस्म से अजीज जलकर राख हो गए। खादिम भागे भागे नबी के पास आए और खबर दी। नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और वक्त अल्लाह की इबादत में लगा सकूंगा। शैतान हैरान रह गया। फिर उसने अस्तबल में आग लगा दी। तमाम जानवर जलकर मर गए और कुछ चरवाहे भी। बाकी चरवाहे दौड़ते हुए नबी के पास खबर लाए। नबी ने वही कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, परेशान होने की कोई बात नहीं। शैतान और जल उठा।
उसने सोचा अब औलाद को निशाना बनाना चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 4 बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। शैतान ने छत गिरा दी, बच्चे मलबे में दबकर शहीद हो हुए खबर दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब शैतान पागल होने लगा कि इतने बड़े गम के बाद भी अय्यूब का सब्र और ईमान कम नहीं हुआ। सिर्फ 1 हफ्ते में उनकी दौलत, औलाद और आराम छिन गया। दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़ गए, सिर्फ उनकी बीवी हजरत रहमत उनके साथ रहीं। वह अपने शौहर को कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। लोग ताने देने लगे, अगर अय्यूब नबी होते तो उन पर यह कहर क्यों आता। शैतान ने अब उनके जिस्म को निशाना बनाया। वह आया और नबी के कानों में फूंक मारी। अगले दिन उनके जिस्म पर छाले निकल आए, फिर जख्म, फिर कीड़े पड़ गए, जिस तक गलने लगा। वह 5 साल तक इस बीमारी और दर्द में रहे। बीवी रहमत उनकी सेवा करती, लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी लाती और शौहर की देखभाल करती। एक दिन जब कीड़े उनके जिस्म से गिर पड़े तो नबी ने फरमाया, इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में लौटेगा। अगर ये कीड़े मेरे जिस्म, बस उनसे कह देना कि सही होने पर मेरे नाम पर एक बकरी ज़बह करे और एक सजदा करे। रहमत खुश होकर लौटी और नबी से कहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से में बोले, ये हकीम नहीं था, ये शैतान था। लोग ताने मारने लगे, अय्यूब का खुदा उसे शिफा क्यों नहीं देता। ये सुनकर नबी ने अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ की, मौला, तेरी शान में लोग जो जुमले कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ है, तू रहम करने वाला है। अल्लाह ने रहमत फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अपने पांव से जमीन पर मारो। नबी ने मारा तो पानी का चश्मा निकला। उसमें नहाते ही वह बिल्कुल जवान, तंदुरुस्त और खूबसूरत हो गए। बीवी रहमत वापस आई तो शौहर को न पाया, रो रो कर दुआ करने लगी। तभी एक खूबसूरत शख्स दिखाई दिए। रहमत ने पूछा, क्या आपने उस बीमार को देखा है जो यहां रहता था। वह मेरे शौहर अल्लाह के नबी यूब है। शख्स ने पूछा, अगर तुम उनका चेहरा देखो तो पहचान लोगी। उन्होंने कहा, 22 साल जिनकी सेवा की, उन्हें कैसे न पहचानूंगी। फिर नबी ने चेहरा खोला। रहमत दौड़कर गले लग गई और रोती रही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। नबी ने रहमत को भी उस पानी में नहलाया। वह भी जवान और खूबसूरत हो गई। घर लौटे तो बच्चे जिंदा मिले, खेत खलिहान पहले जैसे हो गए, दौलत लौट आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, आपने कसम खाई थी कि बीवी को 7 कोड़े मारेंगे। अल्लाह ने रहमत की खातिर आसान किया। 7 गेहूं की बालियां लेकर एक साथ हल्का सा छुआ दिया। कसम पूरी हो गई और रहमत को तकलीफ भी नहीं पहुंची। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की एक मिसाल कायम की। अगर आपको मेरी ये दास्तान। मदीने की गलियों में उस दिन सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था। हर जानिब रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी तो थी, मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए। 3 दिन हो चुके थे कि चूल्हा ही जला। फाका की कैफियत थी और मासूम बच्चे भूख से निडाल होकर रो रहे थे। फज्र की नमाज के बाद नामोनिशान, यहां तक कि दरख्त भी सूखकर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर सब एक सुख आराम फरमा रहे थे। उधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की रोने की आवाज सुनकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके करीब आई। तब इमाम हसन और हुसैन धीमी आवाज में कहने लगे, अम्मीजान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमें कुछ खाने को दें। भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गई। दिल में हुक उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बाजान खाने की तलाश सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रज़ियल्लाहु और हुसैन रज़ियल्लाहु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और मां फातिमा दिल ही दिल में कहने लगे, काशकर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थमाता, लेकिन यह दरख्त भी तो सूख चुके हैं। अब वही मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गई। फिर वह दोबारा निकल पड़े थोड़े से खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? माम करके वापस लौटा दूं। मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, अली, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली जलालू दिल शिकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के बिल्कुल बीच में था। उसकी तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी।
उधर बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरों का रुख दरवाजे की तरफ था। वो बेसब्री से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हजरत हसन और हजरत हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पुकारने लगे, अब बाजान आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ ना खस के, बस इतना बोल सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा है, फातिमा मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से खाने का कोई इंतजाम ना हो सका। तब बीबी फातिमा ने नम और तसल्ली से कहा, मेरे जान से अजीज शौहर आप फिक्र ना करें, रिकिक का मालिक अल्लाह है। आप अब्बाजान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शायद वह कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल भी देर ना की और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर एक बार रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रोती हुई आवाज में अपने रब से दुआ मांगी, हर कुछ मुमकिन है, हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफी है। तुझ किसी चीज की कोई कमी नहीं, मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमान तक कांप उठा। यह मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने वो रुदन सुना और सब के सब अल्लाह के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ए हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं, उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रुदन, ये तरफ, यह भूख और बेबसी का आलम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ महबूब में रहबू में रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरीदम होगा है और मेरे महबूब से कह देना कि वह जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाएगा। यह सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शरीफ फरमा थे, मगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो दर्द और करबथाव से जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र थी, दिल में भी गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके कहने लगे, रसूल अल्लाह आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, आप जिधर भी निगाह डालेंगे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने तमाम बात बयान की और वहां से रुखसत हो गए। उधर बीबी फातिमा ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और रो पड़ी, बस इतना कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूं। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना ही होने वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां आप पहुंचे। सलाम अर्ज करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूं। फातिमा जी अल्लाह ताला अन्हा और बच्चे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन जी अल्लाह ताला अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है, ना ही खाने का जा इंतजाम है ना पानी का। या रसूल अल्लाह, आप कोई इंतजाम फरमा दें। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहां से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनी फौरन उस तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो एक सूखा हुआ मुकद्दर है। यह देखकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूट गया और वो दोबारा वो कैसे फल देगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना कि मुझे आखिरी नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने भेजा है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखे मुर्दा खजूर के दरख्त के और रोटी हुई आवाज में अर्ज करने लगे, ए खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहां के बादशाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 3, तुम यह दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुक्म से और आखिरी नबी के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत लौटा। अभी यह अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि वह मुर्दा खजूर का दरख्त, जिसमें जिंदगी का कोई निशान तक ना था, अचानक हिलने लगा और उस पर से गिरने लगी ताजा नरम नाजुक खुशबूदार जन्नती खजूरें। इतनी खजूरें गिरी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। एक मुर्दा दरख्त से इतनी ताजा खजूरें, यह तो अल्लाह का करिश्मा था।
उन्होंने बहुत सी खजूरें चुन ली और खुशी खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो मुर्दा दरख्त अब ताज़ा खजूरें दे रहा है। यह तो अल्लाह की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने के, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुमने गिले नकदे दरख्तों से भी खजूरें निकलती रहती। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अबू जहल से हुई। अबू जहल ने हैरान होकर पूछा, ए अली, ये खजूरें तुम्हें कहां से मिली? अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है, दरख्त मर चुके हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दे दरख्त ने ताजा खजूरें दी हैं। यह सुनकर अबू जहल दंग रह गया, हैरत ज़दा और शजदर खड़ा रह गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे तो उन्हें हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए और मासूमियत से बोले, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर उन्होंने आवाज दिया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुशी से चौंक उठी, कहने लगी, मेरे जान से प्यारे शौहर, इतनी नरम खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहां से लाए हो? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया है, फातिमा, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, इन्हीं मुर्दे टहनियों से मैं यह खजूरें ले आया हूं। तब भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला समझ गई कि अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने बच्चों को खजूरें दी, सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जी भर कर खाया। फिर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार फिर रोटी हुई आवाज में अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगी, अल्लाह, मैं जानती हूं तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन, तू चाहे तो मुर्दे दरख्त तक को भी जिंदगी अता कर देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी रहमत और कुदरत को देख लिया है। तूने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें अता फरमाई, यह तेरी रहमत है। मगर कमाल यह था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी रहमदिल थी कि वह यह सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों मिस्कीनों को दे दिया करती थी। उधर अबू जहल दिल ही दिल में कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है, जरूर को इजादू से लाया गया है। यह जादू है या नबूवत की निशानी, मैं इसकी जांच करता हूं। यह सोचकर उसने कुछ कंकरियां अपने हाथ में ली और कुछ लोगों को साथ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें निकाल ली,